अगर अमेजोन के थ्रू या मिंत्रा के थ्रू लेट से कोई सर्विस है अर्बन कंपनी के थ्रू, तो बिकॉज ऑफ इन अर्बन कंपनी की ट्रस्ट या अमेजोन की ट्रस्ट, और वहां पे नंबर ऑफ यूजर्स इतने ज्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से शायद मैं परचेज कर लूँ सर्विस, या मैं उसको सर्विस को ऑप्ट कर लूँ। लेकिन अगर वही मैं इंडिपेंडेंट अपनी वेबसाइट से बेच रहा हूँ, तो शायद कन्वर्जन वहां पे टफ हो जाता है। वहां पर आपकी आपके रिव्यूज, आपके टेस्टिमोनियल जो आप गूगल में जो भी है, आपकी गूगल माई बिजनेस पेज में कैसा रिव्यूज हैं, आपको इंटरनेट पे या गूगल पे क्या आपके बारे में लोग लिख रहे हैं, उसके रिव्यूज के प्रोडक्ट के क्या हैं, वो सब दैट मैटर्स। क्योंकि आप वहां पर सामने आप नहीं हो अपने प्रोडक्ट को सेफ गार्ड करने के लिए या एडवोकेसी के लिए। आप एडवोकेसी के लिए सामने कस्टमर के नहीं हो, तो अल्टीमेटली जो वहां पर रिव्यूज अवेलेबल होंगे या टेस्टिमोनियल्स होंगे, उनके बेसिस पे सबको होगा। Hi, welcome to the Digital Vigyan podcast. Vigyan is a Sanskrit term for science, and that's precisely what this podcast is all about, the science behind digital marketing. I'm your host, Dronacharya Dave, and I'm here to speak with experts from different domains of digital marketing as well as industry segments and learn their opinion on the ever changing landscape of digital marketing. Hello, everyone, and welcome to another insightful episode of Digital Vigyan podcast. This is episode number 5, and for this episode, I hosted a very seasoned digital marketing expert, Mr. Vikas Uttam. Mr. Uttam carries nearly 15 years of experience in this domain and has deep knowledge around running successful demand generation as well as lead generation campaigns. So I thought, why not get him to shed some light on these very elements of digital marketing? After all, when we talk about digital marketing, one of the main objectives for any company is to generate quality leads as well as create a demand for their products and services. Here's how the conversation unfolded. Hello, Vikas ji. Welcome to the Digital Vigyan podcast. And thank you for taking out time from your busy schedule to join me on the show. So thank you, Dronachar, for inviting me in your podcast. Yeah. So, Vikas ji, for this particular episode, I would like to explore a very specific element of digital marketing, which is, I think, if we talk in terms of the entire customer journey, you know, it's a very crucial element of it, which is demand generation as well as lead generation. So, to start with, I would like your opinion on it. I would like you to shed light on it. uh, What it is, why is it important? Uh, how can one make the most of it? So just if you can elaborate a little bit on the aspects of demand generation and lead generation, starting with demand generation. Okay, so as the name suggests, demand generation is a process or to raise brand awareness and increase demand for your product. That means ki, firstly, if let's say if there is a product new in the market, so first you wanted to create demand or create awareness towards the product, so that people in coming time, on coming days, should consider to buy or purchase from the website, or through any means of channels, through store, visiting to store or online medium there. So if the so that is what the demand generation. And lead generation is the next process to, once the product is well informed, aware, low people know about this, then only the people will try to give their information in by giving their information like email ID or contact number. Otherwise people are very much hesitant to giving your information. Like if you know,
the only 90% people follow the brands over the social media. Only 50%, 84% people also buy through these particular brands only. Nobody go beyond whatever he or she is not following on social media. Right. So that is what the demand generation, and the difference is with lead generation. Right. So, if you talk about the entire, uh, customer लाइफ साइकिल जर्नी, राइट, जैसे डिजिटल मार्केटिंग में हम देखते हैं कि एक कस्टमर जर्नी होता है जिसमें वी टॉक अबाउट टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ फनल, बॉटम ऑफ द फनल, जिसमें हम अलग अलग तरीके से कस्टमर्स को अप्रोच करते हैं। टॉप ऑफ द फनल में जो कस्टमर्स रहेंगे उनको हम किसी और तरीके से, उनको किसी और तरीके का कंटेंट हम प्रोवाइड कराते हैं। जो मिडल ऑफ द फनल होते हैं उनको किसी और तरीके का, एंड देन ऑब्वियसली दी बॉटम ऑफ द फनल जो कन्वर्जन के एकदम नजदीक करीब होते हैं बेसिकली, नजदीक होते हैं। राइट। सो एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, डिमांड जनरेशन एंड लीड जनरेशन, दोनों ही जो एस्पेक्ट्स हैं वो somehow they fall under the top of the funnel ब्रैकेट। वो जो टॉप ऑफ द फनल रहता है उसी में वो लोग रहते हैं। तो कुछ की डिफरेंसेस हैं इन दोनों में, लाइक कैसे कोई डिफर करेगा? देखिए जैसे मान लीजिए कोई कोई मार्केट एज अ डिजिटल मार्केटर कोई नया फ्रेश स्टार्ट कर रहा है, उसको उसके कंपनी ने बोला है कि ओके, हमें आप एक डिमांड जनरेशन कैंपेन बना के दीजिए, बट हमें एक लीड जनरेशन कैंपेन भी बनाना है, तो वो क्या देखिए नोसेस होंगे जिनको वो डिफर कर पाएगा? देखिए अ, इसमें देखिए दोनों अलग टर्म है। डिमांड जनरेशन मीन्स द प्रोडक्ट इज वेरी न्यू, nobody knows about that product or that particular service. राइट। एंड लीड जनरेशन इसके बाद का एक प्रोसेस है कि जब आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे को लोग जानने लगेंगे, वहां पर विजिट कर रहे हैं, उसके बारे में कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो उसके बाद वो मोमेंटम स्टार्ट होता है। तो मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मैं एक कोई नया प्रोडक्ट है या नई सर्विस है। लेट्स से कि मैं अगर ट्रैवल के बारे में बात करता हूँ, एक ट्रैवल के स्पेसिफिक कैंपेन के बारे में बात करता हूँ। लेट्स से कि एक कैंपेन है, व्हाट आई डू, ऊटी एंड मैसूर का टूर है, ठीक है। अब मैं एक नया ट्रैवल कंपनी हूँ या ट्रैवल एजेंट हूँ बेसिकली, ठीक है। तो अब वो सबसे पहले क्या कर रहा है कि अपने पेजेस, लेट से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सोशल मीडिया चैनल फेसबुक या इंस्टा के थ्रू उसने सबसे पहले स्टार्ट किया कि उसने ऑर्गेनिक पोस्ट या ऑर्गेनिक पोस्ट डालना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ऑर्गेनिक पोस्ट के थ्रू उसको मे बी लेसर अट्रैक्शंस मिले, लेसर ऑडियंसेस आए, उसके पेज को लाइक करें या उस पर कमेंट करें। तो क्या करता है कि वो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि ठीक है, इसने सोशल मीडिया में ऑर्गेनिकली ट्राई किया, कोई इसको इंटरेक्शन नहीं आया, ठीक है। तो मैं सबसे पहला स्टेप क्या करूंगा कि जब मैं एड्स पे जाऊंगा या डिमांड जनरेशन के लिए, तो सबसे पहले मैं अपना ऑब्जेक्टिव सेट करूंगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है बिहाइंड बिहाइंड द कैंपेन। सो लेट्स से मेरा उस समय गोल होगा कि अवेयरनेस, ठीक है। लीड जन बात का होगा अवेयरनेस, प्रोडक्ट के बारे में मतलब सर्विस के बारे में अवेयरनेस, और जो भी मेरे पास कैंपेन है उसके बारे में लोगों को दिखाना, उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन की आइटनरी के बारे में बताना। दैट इज व्हाट द सबसे पहला स्टेप होगा। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं एक अपना ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव सेट कर रहा हूँ, वो पेपर वो का ऑब्जेक्टिव प्लान कर रहा हूँ, क्या मुझे सिर्फ अवेयरनेस जनरेट करनी है अभी फिलहाल, पहला स्टेप। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं ऑडियंस डिफाइन करूँ कि मेरे टारगेट ऑडियंसेस क्या होंगे, ठीक है। टारगेट ऑडियंसेस मेरे क्या होंगे वो मैं देखूंगा। इसके बाद अब टारगेट ऑडियंसेस में क्या होगा कि टारगेट ऑडियंसेस में मे बी मैं विमेंस को, एक एज की विमेंस को या एक एज के मेल्स को चेज कर रहा हूँ। 18 टू, लेट्स से कि मैं 18 टू 24 नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि 18 टू
24 लेट से कि ऐसा ग्रुप है कि अभी न्यूबी है, कॉलेज पास आउट है, तो मैं चेस कर रहा हूँ कि ऐसे जो अर्निंग मेंबर्स है, ठीक है। तो तो स्टार्टिंग में ये भी है कि हमारा स्टार्टिंग में गोल, मैंने पहले बोला कि अभी मेरा गोल सेल का नहीं, सेल्स जनरेट नहीं, मेरा सिर्फ और सिर्फ है कि मैं अपने टूर पैकेजेस की आइटनरी के बारे में, उस लोकेशंस के बारे में, कि वहां पर व्हाट आर द एलिमेंट्स, व्हाट आर द एक्टिविटीज यू कैन डू एट द ऊटी, ये सब चीजें मैं अवेयर कर रहा हूँ लोगों को, ठीक है। और ये मान लीजिए हो गया कि मैं एक टूर पैकेज के टर्म्स में बात करता हूँ। लेट्स से कि मैं एक सर्विस बेच रहा हूँ या प्रोडक्ट है, मान लीजिए कोई सैस प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले इसके बारे में मैं कैसे डिमांड क्रिएशन करूंगा। तो मैं मार्केट रिसर्च या और टारगेट ऑडियंस की डेप्थ को डिफाइन कर रहा हूँ कि कैसे। लेट्स से कि एक सर्च सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब हम सबसे पहले अपने फेसबुक पोस्ट या फेसबुक जैसे भी आ रहे हैं, आप फ्री सोशल मीडिया के थ्रू जा रहे हैं या पेड सोशल मीडिया के थ्रू जा रहे हैं, बट आपको सबसे पहले आप ये R&D तो करनी पड़ेगी ना, कि व्हाट आर योर टारगेटिंग ऑडियंसेस, मतलब वो यूजर कौन से जिनको आप चेस करने जा रहे हो। एक वो यूजर पर्सोना क्रिएट करना पड़ता है। करेक्ट करेक्ट, दैट्स व्हाट। ठीक है, तो अब लेट्स से कि आपका कोई सॉफ्टवेयर है या प्रोडक्ट है, अब बेसिकली वो किस तरह की यूजर्स की जर्नी को या किस तरह के यूजर्स के पेन पॉइंट्स को सॉल्व करता है, ठीक है। किस तरह के किन यूजर्स की किन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तभी तो उसका पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रोल होगा ना। तो वो सारी चीजें मैं आइडेंटिफाई कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये टारगेट ऑडियंसेस में किस एज ग्रुप के होंगे, उनकी उनका इनकम ग्रुप क्या होगा, किस इनकम के हैं, एज क्या है, मेल है, पेरेंटिंग स्टेटस क्या है, पेरेंट हैं या नॉन पेरेंट। यहाँ पे हालांकि पेरेंट्स और नॉन पेरेंट का कोई रोल नहीं है। और यहाँ पर ये भी कि मुझे किस इंडस्ट्री के लोगों को चेस करना है, बिजनेस एंड फाइनेंस है या ई कॉम है या किस तरह के हैं, मतलब एक बायर पर्सोना पूरा जो मेरे मायने में है, मैं उस तरह की चीजें आइडेंटिफाई कर लेता हूँ एट द टाइम ऑफ आप जब कैंपेन क्रिएट कर रहे होते हैं। ऑर्गेनिक के टाइम में जब हम सोशल पोस्ट करते हैं, हो रहे होते हैं, तो उस समय हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। इन चाहे गूगल की बात करें, गूगल एड्स में, या मैं फेसबुक एड्स या फेसबुक एडवर्टीजमेंट में या इंस्टाग्राम एड्स में या लिंक्डइन एड में, यहाँ पे उस समय फ्री का जवाब कर रहे होते हैं। तो उसमें गूगल ये सारे प्लेटफॉर्म जो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं देते हैं, ठीक है। तो आप जब ये सारी चीजें पेड के थ्रू करते हैं, तो ये सारी चीजें पहले दूसरा स्टेप हो गया, ये प्लान करते हैं, ठीक है। और फिर इसके अराउंड, ये तो पेड की बात हो गई। तो मान लीजिए आपने ये सब बेसिक बेसिक आइटम्स चूज करने के बाद अपने बायर पर्सोना के हिसाब से आपने उनको एक कैंपेन क्रिएट किया, ठीक है। आपने 7 डेज उनको चलाया, ठीक है। इसके साथ में आपने कुछ और चीजें करी, लेट्स से कि ये एक पार्ट हो गया पेड मैनेजमेंट, सोशल मीडिया या गूगल एड्स के थ्रू गए। क्योंकि दोनों देखिए, गूगल एड्स और फेसबुक या इंस्टाग्राम दोनों में फर्क है। बेसिकली गूगल एड्स क्या है, डिमांड बेस्ड सर्च मैकेनिज्म, जहां से यूजर को पता होता है कि उसे क्या चाहिए, ठीक है। और जबकि जो सोशल मीडिया है, ये अलग तरह का बिहेवियर है। हम यूजर को उसकी फीड में मूव करते हैं। लेट्स से कि मैं हूं या आप हैं या कोई और जनरल यूजर है, वो अपने फेसबुक में ऐप में बैठा देख रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, और रेंडमली मेरी सर्विस से रिलेटेड कोई ऐड आ गया या पोस्ट दिख गई ऑर्गेनिक, तो उसने टैप कर दिया। तो यहाँ पर दो फर्क है सबसे बड़ा, कि एक है डिमांड बेस और एक है ब्राउजिंग बेस, ठीक है। जैसे मैं अभी गूगल डिस्कवर की बात करता हूँ, गूगल डिस्कवर क्या है, ये सिर्फ एक गूगल डिस्कवर एक ऐसी सर्विस है गूगल की, जो सिर्फ आपको जो ब्राउजिंग करते हैं, जो कंटेंट कंजम्पशन के बेसिस, जिनका कंटेंट कंजम्पशन जिस तरह का होता है, उनको उसकी फीड में उस तरह का एड या बेसिकली कंटेंट वो प्रोड्यूस कर देता है। न्यूज फीड आता है। करेक्ट, वो फीड्स आ जाती हैं, ठीक है। अब अब मैंने मान लीजिए ये बात कर ली, अब मैंने कुछ न्यूज़लेटर क्रिएट करे, कुछ मैंने कंटेंट क्रिएट किया, ठीक है। और जिसको कि मैं लेटर ऑन किसी भी मीडियम या किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे या PR साइट्स पे प्रेस रिलीज डालता हूँ, या मैं medium.com पे अपलोड करता हूँ। तो फिर इसी तरह से मैं कुछ केस स्टडीज भी क्रिएट करता हूँ, या वाइट पेपर या डाउनलोड्स
कुछ ऐसा मटेरियल जो डाउनलोड हो सके। तो ये मेरा डिमांड जनरेशन की एक प्रोसेस के लिए रेडीमेड मटेरियल है, ठीक है। क्योंकि और इसी ये मेरे मटेरियल, और मैं इनको अलग अलग जर्नी पे या अलग अलग फेज पे इन चीजों को दूंगा। लेट्स से मैंने अब मैं लौट आता हूँ बात के वापस फेसबुक पे, कि जो मैंने कैंपेन स्टार्ट किया था, उस समय मैंने 7 डेज तक कैंपेन चलाया। और बेसिकली वो कैंपेन, दो तरह के कैंपेन मैंने रन किए। एक अपने सोशल मीडिया पेज की फॉलोइंग बढ़ाने के लिए, लाइक्स बढ़ाने के लिए किया। एक मैंने दूसरा कैंपेन किया जिसमें मैं अब ट्रैफिक कैंपेन, ठीक है, जिसमें मैं अपने किसी पर्टिकुलर सर्विस के पेज में ले जा रहा था। ये मेरा सेकंड फेज था, जहां पर मैं यूजर को एक लाइक का कैंपेन चलाया, जब मैं अपने पेजेस पे यूजर को सिर्फ लाइक करा रहा हूँ, क्योंकि लाइक वाले कैंपेन्स का भी मैं फर्दर कुछ ना कुछ यूज करूंगा। सेकंड मेरा था कि मैंने देखा कि हाँ मेरे पेज पे काफी कुछ लाइक्स आ रही हैं, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं एक ट्रैफिक कैंपेन स्टार्ट करूं। ठीक है, ट्रैफिक कैंपेन चालू करता हूँ, जिससे लोग मेरे एटलीस्ट जो भी मेरा लैंडिंग पेज है या मेरा सर्विस का पेज है या मेरी वेबसाइट है, उस पे जाके मैं देखता हूँ कि यूजर क्या करता है। ठीक है, अब वो फुल फ्लेज्ड वेबसाइट होगी, वेबसाइट के अंदर मे बी कुछ पीडीएफ्स भी पड़ी हों, और भी थर्ड लिंक्स होंगे जहां पर उस पेज से, उस सर्विस से रिलेटेड कुछ भी पढ़ सकता है। मे बी उसके अंदर कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट का फॉर्म हो, जिसके थ्रू वो सर्विस के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, सर्विस के बारे में कोई क्वेरी कर सकता है। ठीक है, तो अब ये ट्रैफिक मान लीजिए दोनों मैंने पहले लाइक कैंपेन चलाया। ठीक है, लाइक में मेरे पास लेट से कि फर्स्ट वीक में मेरे पास 1000 लाइक्स आ गए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जो मैं ट्रैफिक कैंपेन स्टार्ट करूंगा, उन ट्रैफिक कैंपेन्स के लिए मैंने क्या किया, पहले एक पैरेलल मैंने एक इसके साथ में मैंने एक कस्टम ऑडियंसेस या लुक अलाइक ऑडियंसेस क्रिएट करे। जो कस्टम ऑडियंसेस क्या होंगे, कि वो लोग जो मेरी वेबसाइट में आके, जब मैंने कैंपेन रन किया था या किया था, जो जिन्होंने लाइक किया, बेसिकली मैं लाइक वालों को लेता हूँ, कि वो यूजर जिन्होंने लाइक किया, अब मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने लाइक किया, मैं उनको एक ट्रैफिक कैंपेन में जब ले जाता हूँ, जब मैं ट्रैफिक कैंपेन ऑन कर स्टार्ट करता हूँ, तो मैं इनको चेज करता हूँ, और मैं उस समय अपना कोई ऐसा पेज लाता हूँ, दिखाता हूँ, जहां से उनके पेन पॉइंट को सॉल्व करने के लिए कुछ उस सर्विस में हो। ठीक है, तो अब ये एक चीज यहाँ से समझ में आ गई कि मैंने क्या किया, कि मैंने सबसे पहले एक डिमांड जनरेट करने के लिए मैंने दो मैकेनिज्म स्टार्ट करी। पहला, कि मैंने अपने पेज पे पहले तो लोगों को सिंपल अपने पेज के बारे में बताया। सेकंड में मैंने क्या किया, ट्रैफिक में, कि बेसिस ऑन लाइक्स मैंने अपने ट्रैफिक कैंपेन में के थ्रू मैं यूजर्स को, जो उनकी जिसकी वजह से उन्होंने लाइक किया था, क्योंकि इंटरेस्टेड होंगे बेसिस ऑन जो भी उसमें थोड़ा सा शॉर्ट बायो लिखा होगा, डिस्क्रिप्शंस लिखा होगा, उसके बेसिस पे उनको कुछ समझ में आया होगा, बेसिस ऑन दैट दे लाइक और फॉलोड आवर फेसबुक पेज। इसके बाद उन्होंने लेट्स से कि ट्रैफिक कैंपेन के थ्रू, अब मैंने मान लीजिए कि 1000 यूजर, 1200 यूजर्स को मैंने अब अपने उस एक ट्रैफिक कैंपेन में ले जा रहा हूँ, जहां पर मैं उसको, जब वो क्लिक करेगा तो सर्विस के पेज पे जाएगा। अब वहां पे सर्विस के पेज में जब जाएगा या प्रोडक्ट के पेज में जाएगा, तो उसको वहां पर ये पता लगेगा कि व्हाट इज ऑल अबाउट सर्विस, और वो सर्विस के अंदर क्या दे रहे हैं। तो अब मैं दोनों इन स्टेप्स के थ्रू क्या कर रहा हूँ, एक अवेयरनेस जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, अवेयर जनरेट कर रहा हूँ टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। ठीक है, ये एक तरह से एक फर्स्ट स्टेप होगा डिमांड क्रिएशन का। ठीक है, अब इसी तरह से, अब इसके लिए भी मैं मल्टीपल, मान लीजिए मेरे दो कैंपेन टाइप हो गए, इनका मुझे 7 डेज के बाद में मुझे कुछ इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। कुछ लोग लीड फिलअप, मतलब फिलअप अभी भी मान लीजिए बहुत ही रेयर होगा, 5% 2%, 100 यूजर में दो एक यूजर ने ही लीड फिलअप किया होगा। ठीक है, तो अभी भी कहने का मतलब है कि यूजर को ये नहीं पता लग पा रहा है या इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, कि फिर मैं ऑडियंसेस के सेगमेंट क्रिएट करता हूँ, जैसे कि लाइक जैसे एफिनिटी यूजर्स होते हैं या इन डिमांड यूजर्स होते हैं। ठीक है, तो इन मार्केट, सॉरी सॉरी, इन डिमांड नहीं, इन मार्केट यूजर्स होते हैं। तो एफिनिटी यूजर्स वो होते हैं
जिन्हें ठीक है सर्विस के बारे में पता होता है, थोड़ा जान रहे होते हैं, बट ठीक है, बट दे आर नॉट बाइंग यूजर्स। इनका कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं कुछ सर्विस लूं या ये कोई प्रोडक्ट परचेज करूं, ठीक है। सेकंड आया कि तो मैं एफिनिटी यूजर्स को चेज नहीं कर रहा हूँ, मैं आता हूँ इन मार्केट में। इन मार्केट यूजर्स वो होते हैं जो दे आर इन कस्प ऑफ बाइंग और परचेजिंग दैट पर्टिकुलर सर्विस और दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर देयर नीड, ठीक है। तो अब ये चीज मैंने कस्टमर ऑडियंसेस बनाया और मैंने ऐसे यूजर्स को भी अपने ट्रैफिक या लाइक के कैंपेन्स दिखाना स्टार्ट किए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं कहाँ पर कि यूजर को लीड जनरेशन करने के लिए, कि वो लीड जनरेट करे या मेरे कॉन्टेक्ट फॉर्म में कुछ इंक्वायरी करे, ठीक है। तो अब इसके लिए भी मेरे पास और भी मटेरियल होना चाहिए। यहाँ पर तो हमने सिंपल अपने फेसबुक पेज में जो यूजर जनरेट करे वो लाए, अब मेरा एक पेज था मैं वहां तक ले गया। अब मान लीजिए कि मुझे अब यहाँ से दो तरह की कैंपेन्स मैंने चला ली, ठीक है, रन कर लिए, तो अब मुझे काफी कुछ अंडरस्टैंडिंग है कि यूजर क्यों नहीं लाइक कर रहा है, या कम लाइक कर रहा है, या फिर पेज में आ रहा है तो बिना लीड फिलअप कर क्यों जा रहा है। तो अब मेरे पास कुछ और भी चीजें होंगी कि लाइक मैं कुछ केस स्टडी दिखाता हूँ कि इस सर्विस को लेके कितने लोगों को कुछ बेनिफिट हुआ, या इस प्रोडक्ट को परचेज करके कितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व, चाहे वो कोई मेडिसिन प्रोडक्ट हो या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हो, तो कितने लोग की उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। मैं कुछ मे बी डाउनलोडेबल मटेरियल भी दे दूंगा कि लेट से होता है ना कि कुछ लोग तुरंत पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो अपने फ्री टाइम में उन चीजों को पढ़ना चाहते हैं। या फिर मैंने ऐसा किया कि कुछ और स्टफ, मतलब ये एक दो मंथ तक चलने वाले प्रोसेस हैं जिनमें मैं मे भी, अब लगता है कि हाँ अब नंबर ऑफ, मुझे लगता है कि कांटेक्ट कर रहे हैं लोग, लीड फिलअप बढ़ा, मतलब लीड क्या, लोगों ने कांटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन they are not buying or they are not paying for that particular service। कन्वर्जन अभी भी नहीं हो रहा है। अभी भी कन्वर्जन नहीं आया, तो फिर और भी स्टेप्स होंगे कि मैं केस स्टडी डालूं या प्राइस कंपैरिजन का कुछ ऐसा कुछ डालूं कि इस प्रोडक्ट की देखिए कॉस्ट इतनी है और इसकी इतनी है, और कुछ वाइट पेपर, इस तरह के जितना भी हो सकता है। वीडियो टेस्टिमोनियल का भी मैं कैंपेन रन करके देखता हूँ, या एक सिंपल मैं एक इमेज ऐड का कैंपेन रन के देखता हूँ, सिंपल, जिसमें इमेज पे सिंपल एक कॉल टू एक्शन होगा, वीडियो में एक यूजर का टेस्टिमोनियल आएगा। तो ये सब कुल मिला के एक डिमांड जनरेशन, फिर उसको लीड में नर्चर करने की सारी टैक्टिक्स हैं। तो अब मान लीजिए कि ये सारी चीजें मैंने कर लिया, तो अब मेरे पास बात आती है कि एक टर्म होता है इसमें, लीड स्कोरिंग। लीड स्कोरिंग में क्या होता है कि आप, देर आर मल्टीपल चैनल, अभी हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कैंपेन, पेड कैंपेन की थ्रू, ठीक है। अब मान लीजिए कि मेरी वेबसाइट भी है, ठीक है। अब उस वेबसाइट में भी उस सर्विस के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में काफी कुछ जानकारी हो, तो मेरे लिए एक मोड हो गया यूजर को लाने का सोशल मीडिया के थ्रू, दूसरा हो गया लाइक डिमांड जनरेशन थ्रू गूगल एड्स, और अब ये तीसरा एक नया मोड हो रहा है कि मैं यहाँ से उन ऑर्गेनिक यूजर को चेज कर रहा हूँ जो गूगल पे सर्च करके ऑर्गेनिकली मेरी साइट पे लैंड कर रहे हैं। ये चीज हो गया। अब ये हम चार चीजों के बारे में बात कर गए। एक हमने बात करी थी कि वीडियो टेस्टिमोनियल, तो देखा जाए तो ये कितने मोड्स बन गए। एक मैं सोशल में ऑर्गेनिक पोस्ट के थ्रू यूजर को चेज कर रहा हूँ, फिर मैं एक पेड के थ्रू चेज कर रहा हूँ, फिर मैं उसको चेज कर रहा हूँ कि एसईओ के थ्रू, या फिर मेरी लेट्स से कि मेरी कोई मोबाइल ऐप भी है। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम है डिजिटल का, दिस इज ऑल अबाउट creating demands and then generating leads for that particular product or service, ठीक है। राइट। ये So that was very detailed, विकास जी, और आई एम श्योर जो लिसनर्स होंगे उनको काफी इसमें समझ मिली होगी कि हाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वन कैन डिफर बिटवीन
demand generation campaigns and lead generation campaigns, and why both of them have their own importance in the entire digital marketing. बट मैं, जैसे आपने सोशल मीडिया के बारे में भी बात करी, इसमें एग्जांपल दिया आपने, अलग अलग चैनल्स का आपने एग्जांपल दिया कि कैसे हम इसको अप्रोच कर सकते हैं. According to you, like because you have run so many campaigns in your experience so far, आपके हिसाब से मोस्ट इफेक्टिव कौन सा प्लेटफॉर्म रहता है? वेबसाइट पे, सोशल मीडिया पे, ईमेल पे? लाइक विच प्लेटफॉर्म यू थिंक इज द मोस्ट इफेक्टिव वन, जहाँ पे ये लीड जनरेशन या डिमांड जनरेशन के कैंपेन ज्यादा इफेक्टिव होते हैं? सो इसका देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है कि विच वन इज द बेस्ट, पर ये डिपेंड करता है ना कि सबसे बड़ी चीज है कि डिपेंड करता है आपके ऑडियंसेस कहाँ पर. Right. So basically, depending upon the kind of product that you have or the kind of services that you provide, सर्विस एंड ऑडियंस टाइप. and the audience type, yes, like the target audience that you have, based on that it depends कि आपका ये कहाँ मोस्ट इफेक्टिव है, वेबसाइट पे है, सोशल मीडिया पे है, या कहाँ है, वो उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी ऑडियंस टाइप कैसी है बेसिकली. राइट, राइट. सो अब इसमें अब एक चीज ये भी थी, जैसे अभी आप जब एक्सप्लेन कर रहे थे पूरा डिमांड जनरेशन कैसे हम, एक बेसिक जो होता है उसका, तो you mentioned something about a lead scoring model, right? So what exactly is that? Lead scoring क्या क्या है, मतलब कैसे उसको आप एक्सप्लेन करोगे? What is it that lead scoring? लीड स्कोरिंग तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ बिजनेसेस के लिए है, इससे यूजर से कोई मतलब नहीं है. सिर्फ मतलब ये है कि मैं किन किन चैनल से कोई यूज कर सकता हूँ टू गेट दैट पर्टिकुलर लीड स्कोर. लेट्स से कि मेरा टारगेट है कि मैं 2000 लीड्स जनरेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं बकेट करूंगा ना कि मैं कितनी लीड्स में सोशल से टारगेट करूंगा, कितनी लीड्स में एसईओ के थ्रू करूंगा, कितनी लीड में पेड एड से लाऊंगा, कितनी ऑर्गेनिक से लाऊंगा, कितने वीडियो टेस्टिमोनियल से लाऊंगा. ये कुल मिला के हम बकेटिंग करते हैं. दैट इज Okay, द लीड स्कोरिंग, और कुछ नहीं है इसका. सर्च okay. से कितना लाऊं, ये चीज, और कुछ नहीं इसका. अब अगर हम बात करते हैं कंटेंट की, बिकॉज आई थिंक जब हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं, तो एक बहुत ही एक पुराना एक वो कहावत चलती है, एक बहुत ही कॉमन सेइंग जाती है, दैट कंटेंट इज द किंग, राइट? करेक्ट. whatever you do, whatever you have to do, you need to have strong content framework, to execute any type of marketing campaign. So, अग्रीड 100%. considering the situation which is there today, right? मतलब आज की तारीख में अगर हम देखें तो आज से 10 साल पहले अगर हम कंपेयर करें और आज हम कंपेयर करें, तो things have changed a lot, not just in terms of how companies or brands they approach customers, but also the way customers are also consuming content, right? So जैसे आपने बताया कि सोशल, आपने एक एग्जांपल दिया था कि गूगल पे वो मतलब गूगल पे वो चीज जाती है जो कंज्यूमर खुद सर्च कर रहा है, राइट? करेक्ट. बट सोशल मीडिया पे हम उनको फीड कर रहे हैं, राइट? एक तरीके से एक कैंपेन बेस्ड या एक एडवर्टाइजिंग लेड शो ऑफ अप्रोच कर रहे रहती हैं, है शो कर है रहे ना? हैं उनको अनइंटेंशनली और इंटेंशनली. राइट. बट आज की तारीख में जैसा कि देखा जा रहा है कि जो बायर ड्रिवन कंटेंट रहता है, कि आप किस, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ कंज्यूमर एंड आई एम लुकिंग फॉर सम सॉल्यूशन, तो मेरे सॉल्यूशन के मेरे जानने का जो कंटेंट एक्सपीरियंस रहेगा, उस हिसाब से मुझे कंटेंट प्रोवाइड कोई अगर करवा पाएगी, तो आई वुड बी मोर इंक्लाइंड to that brand particularly, rather than someone just showing ads on my feed, or वो pop-ups आ रहे हैं या वो हो रहा है. So what is your opinion on that? Is it buyer driven content, that is actually the thing that brands should focus on now, or they should
still focus more on advertising or campaign based approach when sharing their content with the consumers? Over social or something else. So, Anywhere, so, anywhere. लाइक so ऑर्गेनिकली बात कर रहा हूँ मैं, अभी पेड के बारे में बात ही नहीं कर रहा मैं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक in अप्रोच. general, in general. हाँ. So, as I would say, and also Google suggests that you always content towards the toward the pain points or problem solutions based content to grab the user's attention or so to grab the secret user's attention. So that is the best mechanism. You explore your website, that what the content they are people are trying to search on your product, your website. Like I wanted to take my example in one of the organization in organization when I basically tried what our users are wanted from us. हमारे यूजर्स हमारे वेबसाइट से क्या हमसे क्या चाहते हैं बीइंग. तो मैंने उस समय कुछ चीजें आइडेंटिफाई करी और मुझे लगा कि दिस दिस इज द टॉपिक which which is very good for our parenting partners. At the time, I'm working for one of the parenting network based in Gurgaon. So, basis on the research, content research or insight research from the website, I created a content and published on the website, having some important as important step like having video related images, related FAQs, and related uh, uh, test related user reviews. Okay. What I see once I published hardly takes 24 hours, and this becomes this becomes in top ranking of Google. And you will be basically imagine that that particular content piece only generated 45,000 user footfall in last uh, hardly 48 to 72 hours में उसने 48,000 यूजर्स ने उसे सर्च किया. हाँ. बट फर्क ये था कि वो ऐसा कंटेंट था जो मस्ट हैव था फॉर पेरेंट्स हु हैव चाइल्ड्स. तो डिपेंड करता है ना कि आप किस तरह का कंटेंट क्रिएट कर रहे हो जो कि कंज्यूमेबल है या नहीं कंज्यूमेबल है. ये तो देखिए बहुत तरह का कंटेंट है. कंटेंट मार्केटिंग और कंटेंट इज ऑल अबाउट कि आप अपने यूजर्स को कैसे एंगेज करते हो. व्हाट काइंड ऑफ स्टफ यू आर ट्राइंग टू पीपल रीड ऑन योर वेबसाइट ओनली. तो वो चीज. राइट. तो एक एक चीज और थी इसमें, इसी में सेम लीड जनरेशन में बेसिकली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट. तो अब मैं थोड़ा सा जो आज की तारीख में जो एक पूरा एक जो ट्रेंड चल रहा है, एक टेक्नोलॉजी ट्रेंड चल रहा है, एक वेव चल रही है पूरी डिजिटल मार्केटिंग में, विच इज डिजिटल फ्रेमवर्क में, नॉट जस्ट मार्केटिंग बट एंटायरली, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन का जो इंटीग्रेशन हो रहा है आज की तारीख में, के टूल्स इतने सारे जो डिजिटल मार्केटिंग में आज की तारीख में यूज हो रहे हैं, ऐसे में आई थिंक इवन लॉट ऑफ AI technologies, AI tools are getting also integrated to digital marketing framework as well. उसी में अगर स्पेसिफिकली मैं लीड जनरेशन के लिए बात करूं तो देर इज दिस इंक्लूजन ऑफ AI चैटबॉट्स, राइट. आज की तारीख में हम देखते हैं कि मतलब ये मे बी मैं ये कहूंगा कि शायद बहुत ही न्यू नहीं है, इट्स बीन देयर फॉर अ वाइल, बट लेटली इसका एप्लीकेशन जो है वो बहुत बड़े स्केल पे और एक्टिव स्केल पे देखा जा रहा है कि मोर एंड मोर कंपनीज दे आर यूजिंग चैटबॉट जैसे, एंड नॉट जस्ट ऑन वेबसाइट्स, बट जैसे हम किसी कस्टमर केयर पे कॉल भी करते हैं तो वहां पे भी हम देखते हैं कि मशीन
रिकॉर्डिंग में ही हमारा सारा करेक्ट। आंसर्स हो जाते हैं या जैसे भी हो जाता है। बट अगर मैं डिजिटल फ्रेमवर्क की बात करूं स्पेसिफिकली, राइट, और लीड जनरेशन के एस्पेक्ट में, तो एआई चैटबॉट्स को आप कैसे देखते हैं? मतलब इज दिस टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, इज इट अ गेम चेंजर? ये हेल्प कर रहा है, ये नहीं कर रहा है? इसका क्या फ्यूचर है? आप इसको कैसे देखते हैं एआई चैटबॉट लीड ऑब्वियसली, जनरेशन के एस्पेक्ट में स्पेसिफिकली? व्हाट आई फील कि एआई चैटबॉट और चैटबॉट इंटीग्रेशन will help, definitely help, जहां पर that is beneficial for company as well as for users at any point of interval. Without invest At any point of interval, any user can connect with you, and at the same time, for businesses, without employing any dedicated person at to serve the user at 24/7, तो ये दोनों के लिए हेल्पफुल है। तो कि दोनों के लिए हेल्पफुल है, कि बिजनेसेस के लिए भी एज वेल एज एक एंड यूजर के लिए। एंड यूजर कभी भी लेट्स से कि मैंने एक चैटबॉट इंप्लीमेंट कर रखा अपनी वेबसाइट में, और यूजर को लगता है कि ठीक है, आजकल यूजर को अवेयर होंगे कि मे बी चैटबॉट हो, लेकिन एटलीस्ट उन्हें ये पता है कि वो जो भी क्वेरीज करेंगे उनका आंसर हो। और इससे राइट, बिजनेसेस का भी हेडेक नहीं होगा कि यार संडे है या मंडे है, और राइट, और डेडिकेटेड एम्प्लॉय है कि नहीं, लेकिन हाँ उसको सर्विस वहां से अटेंशन, यूजर को हम अटेंशन दे रहे हैं। यूजर फर्स्ट अप्रोच है कि मैं कभी भी क्लाइंट कस्टमर आ रहा है, मैं उसको एंटरटेन कर रहा हूँ और उसकी जो भी नीड है वो शायद फुलफिल कर रहा हूँ। आज मैं राइट, व्हाट्सएप आज मैं व्हाट्सएप पे हूँ। मैं लेट्स से कि मैं व्हाट्सएप के बहुत सारे चैटबॉट्स हैं, वो जरा सा मुझ उसमें हाय लिखो, जो भी उन वो फॉर्मेट में दिया होता है कि आप पीएस लिखें या कैसे, वो सारे वहां से यूजर जर्नी स्टार्ट हो जाती है, कन्वर्सेशन स्टार्ट, कन्वर्सेशनल, एक तरह से मार्केटिंग इसको बोल सकते हैं। तो राइट, कन्वर्सेशन स्टार्ट हो चुका होता है, और समहाउ वो डेटा कहीं ना कहीं कैप्चर हो रहा होता है कि यूजर का क्या एंड रिएक्शन रहा। तो डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प। अभी मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो पढ़ा था टेस्ला का, वीडियो कन्वर्सेशन जिसमें मशीन टू मशीन बातें कर रही है। ओके, मशीन एक यूजर से एंड यूजर से बात कर रहा है, जिसकी जर्नी थी कि वो एक हाई एंड कार परचेज करना चाह रहा है। तो सब कुछ वो एआई के ही आंसर्स थे, बट सामने यूजर था, बस मशीन उसको रिप्लाई कर रहा है उसके क्वेश्चंस के रिगार्ड। तो बट बहुत ही इसमें रियल लगा, ओके, बहुत बट ही रियल इसमें लगा। इसमें आपको ये नहीं लगता है कि जैसे एज अ यूजर मुझे पता है कि मैं एक बॉट से से बात कर रहा बात कर रहा हूँ? जैसे अभी मैं चैटबॉट की बात करता हूँ, तो मैं किसी वेबसाइट पे हूँ, जैसे मान लीजिए कोई पॉलिसी बाजार है या कोई भी है जहाँ पे मैं मुझे कुछ पॉलिसीज चेक करनी है, तो मैं उस पे बॉट पे मैं बात कर रहा हूँ, तो एज अ यूजर आई कैन सी दैट मुझे जो जवाब दे रहा है या मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो एक रियल ह्यूमन रिस्पोंडेंट नहीं है, एक बॉट है। और हूँ। उससे एक जो जैसा ट्रेंड स्पेसिफिक, है, वो जैसा ट्रेंड है उसी हिसाब से वो रिप्लाईज करता है आपको। जैसा हाँ वैसे करेगा, तो कहीं ना कहीं मुझे रहेगा कि नहीं, मेरे को सेटिस्फैक्शन तब तक नहीं मिलेगा जब तक मैं एक ह्यूमन रिस्पॉन्स से नहीं मिलता मेरे को। तो वो आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं ये भी एक एंगल रहता है कंज्यूमर में कि दे नो दैट, व्हेन दे नो दैट कि यू नो जो मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है इट्स नॉट अ ह्यूमन बीइंग, रादर इट्स अ मशीन, राइट? So whatever response I'm getting is just manually fed responses which that machine is giving to me. तो वो कहीं ना कहीं एक वो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन वाला रह जाता है, उस चीज में लैक रह जाता है। मुझे क्या लगता है कि ये मेरा पर्सनल व्यू है इसमें, मैं मेरा सिर्फ एक पर्सनल व्यू है कि मुझे राइट, ऐसा लगता है ना कि कुछ सर्विस या प्रोडक्ट्स के लिए हेल्पफुल नहीं होगा। इट कैन नॉट बी हेल्पफुल फॉर some particular services or some particular products because of स्पेशलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की में ह्यूमन टच की रिक्वायरमेंट होगी। लेट्स से कि मैं हेल्थ एंड हॉस्पिटैलिटी में हूँ,
तो शायद हेल्थ एंड हॉस्पिटैलिटी के लिए ये हेल्पफुल ना हो। लेकिन हाँ, जैसे कि कोई प्रोडक्ट ओरिएंटेड सर्विस है, या इंश्योरेंस सर्विस है, या ट्रैवल सर्विस है, तो मुझे लगे मेरे लिए ट्रैवल सर्विसेज में क्या है कि भाई मुझे घूमने जाना है, तो मैंने एक जो भी चैटबॉट था उसको अपनी क्वेरी दे दी कि भैया कि हाय मुझे यहाँ यहाँ घूमने जाना है, आप मुझे कोटेशन दे दो, दैट इज ऑल। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि बहुत किसी कॉल किसी कॉलर से बात करे तो उसे अच्छा लगेगा या नहीं अच्छा लगेगा। इसी तरह से इंश्योरेंस में भी है, तुम आपको कोड देना है, इसके बाद में आप भाई इसके बाद तो चैटबॉट आएगा नहीं, इसके बाद तो सेल्स से डायरेक्ट बात होगी। तो ऐसे केसेस में मुझे लगता है कि कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज है जहाँ पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, इवन हेल्पफुल हो। ठीक है। और जहाँ पे ऐसी कुछ सर्विसेज हैं जहाँ पर शायद रिव्यूज का या ह्यूमन टच की जरूरत है, कि जैसे कि हॉस्पिटलिटी मैं मेरे पास एक हेल्थ पैकेज है मेरे पास, तो मुझे लगता है कि वहां पर तो जब तक मैं ह्यूमन लाइक किसी बंदे से बात करनी या किसी पर्सन से बात करने लूंगा, तब तक मुझे रिलैक्स नहीं मिलेगा, तब तक मुझे मैं अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं फील करूंगा। ठीक है। ऐसे केसेस में जहां पर मुझे 24 आवर्स 24/7 सपोर्ट की जरूरत है, लेट से कि मैं कहीं घूमने गया हूँ, ठीक है, तो मुझे उस समय डायरेक्ट एक बंदे से अगर बात हो जाए, एक पर्सन से बात हो जाए, तो मेरे लिए ज्यादा सेटिस्फाइंग होगा रादर देन की मशीन से मैं चैट कर रहा हूँ। Yeah. ये डिफरेंस होगा। Right. So now coming back to the topic, जो हमने जिस पे बेसिकली स्टार्ट किया था, और जो आज का मेन टॉपिक है, विच इज डिमांड जनरेशन। तो उसी पे थोड़ा सा आई वांटेड टू गो अ लिटिल फर्दर डिमांड जनरेशन में ही। सो एंड वो भी स्पेसिफिकली अभी मैं ऑर्गेनिक अप्रोच की बात करूंगा फॉर डिमांड जनरेशन। मतलब हमने ऑब्वियसली, आपने बहुत स्टार्टिंग में बहुत एक डिटेल आपने एक्सप्लेनेशन दिया था कि कैसे हम चाहे चाहे तो हम जो पेड तरीका रहता है, पेड मार्केटिंग का तरीका रहता है फॉर डिमांड जनरेशन, एज वेल एज अ फ्यू ऑफ द ऑर्गेनिक वेज। बट अगर हम ऑर्गेनिक तरीके से सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोसेसिंग की बात करें, सो एज अ प्रोफेशनल, एज अ डिजिटल मार्केटर, एक आप अपनी कंपनी को या अपने मैनेजमेंट को हम एक क्या टाइम फ्रेम दे सकते हैं कि ओके सी, बिकॉज वी आर गोइंग विद एन ऑर्गेनिक अप्रोच, सो वी नीड एक्स एक्स नंबर ऑफ वीक्स और एक्स एक्स नंबर ऑफ मंथ्स, टू सी द रिजल्ट्स कमिंग इन, राइट? बिकॉज ऑब्वियसली हर कंपनी का रहता है कि वो उनको सबसे पहले रहता है रिजल्ट्स कब तक आएंगे, ये बताओ आप हमें, करेक्ट। राइट? कि आप ये कर रहे तो हो, आपने स्ट्रैटेजी बनाई है, आपने ये पूरा प्लान बनाया है, बट इसके रिजल्ट्स कब तक आएंगे? तो वो एक रियलिस्टिक, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अ, एक एक रियलिस्टिक अप्रोच भी होना इसमें थोड़ा सा जरूरी है। तो एक एक रियलिस्टिक टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए एक जेनरिक ऑर्गेनिक अप्रोच के लिए, डिमांड जनरेशन कैंपेन्स के लिए? सो सी, फॉर डिमांड जनरेशन थ्रू ऑर्गेनिक मीडियम्स, तो मतलब इसमें कोई श्योर शॉर्ट नहीं है। या राइट। तो आप बहुत ही यूनिक सर्विस हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं, और और सर्विस बहुत ही जेन्यून है, ओनली देन यू कैन सर्वाइव विद ऑर्गेनिक मार्केटिंग। अदरवाइज आपको 360 डिग्री मार्केटिंग में ही जाना पड़ेगा। और ऐसा, और हर एक चैनल की अपनी स्पेशलिटी है। लेट्स से कि मैं अगर बोलूं कि एक सर्विस है या प्रोडक्ट है, वो मार्केट प्लेस के थ्रू है, एक है आप उसी सर्विस को आप ऑर्गेनिक के थ्रू कर रहे हो, तो दोनों में फर्क हो। ऑर्गेनिक इज अ, मतलब ऐसा है कि ठीक है, किसी ऑब्वियसली अगर ऑर्गेनिक के थ्रू आ रहा है तो ऑब्वियसली जेन्यून हो, ठीक है। यस। लेकिन एज फॉर एज हमारी ह्यूमंस की एक्सपेक्टेशंस कि यार ये मुझे कितना सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट होगा या सेटिस्फाइंग सर्विसेज होगा, तो डाउट रहता है। अगर वो भी उसके लिए मुझे सर्विस लेनी पड़े, पैसा पे करना पड़े, तो फिर और ही ज्यादा सोचता है आदमी, है ना। राइट। तो
अगर मैं वही सर्विस, अगर पर्टिकुलर प्रोडक्ट मुझे बुक अगर अमेजोन के थ्रू या मिंत्रा के थ्रू लेट से कोई सर्विस है अर्बन कंपनी के थ्रू, तो बिकॉज ऑफ इन अर्बन कंपनी की ट्रस्ट या अमेजोन की ट्रस्ट, और वहां पे नंबर ऑफ यूजर्स इतने ज्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से शायद मैं परचेज कर लूँ सर्विस, या मैं उसको सर्विस को ऑप्ट कर लूँ। लेकिन अगर वही मैं इंडिपेंडेंट अपनी वेबसाइट से बेच रहा हूँ, तो शायद कन्वर्जन वहां पे टफ हो जाता है। वहां पर आपकी आपके रिव्यूज, आपके टेस्टिमोनियल जो आप गूगल में जो भी है, आपकी गूगल माई बिजनेस पेज में कैसा रिव्यूज हैं, आपको इंटरनेट पे या गूगल पे क्या आपके बारे में लोग लिख रहे हैं, उसके रिव्यूज के प्रोडक्ट के क्या हैं, वो सब दैट मैटर्स। क्योंकि आप वहां पर सामने आप नहीं हो अपने प्रोडक्ट को सेफ गार्ड करने के लिए या एडवोकेसी के लिए। आप एडवोकेसी के लिए सामने कस्टमर के नहीं हो, तो अल्टीमेटली जो राइट। वहां पर रिव्यूज अवेलेबल होंगे या टेस्टिमोनियल्स होंगे, उनके बेसिस पे सबको होगा। वहां पे आप नहीं है तो फिर जो वहां पर बोलेगा वही है। मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। इवन इन इवन इन पेड कैंपेन, जब हमने 2018-18 में एक कैंपेन स्टार्ट किया फॉर ट्रैवल एंड एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए, पहले मैं ट्रैवल के लिए बात कर लेता हूँ। तो ट्रैवल के लिए जब हमने स्टार्ट किया, तो हमारे पास वेबसाइट के पेजेस थे, और ऑल्दो द कंपनी ओनर्स आर वेरी बिग जायंट्स फॉर उस पर्टिकुलर डोमेन, ट्रैवल डोमेन के लिए, बिकॉज दे वर्क फॉर मेक माई ट्रिप, दे वर्क फॉर गो आई वीवो, और सारे बड़े बड़े लोग थे, वो वीपीज थे, उनमें भी बिजनेस हेड थे, बिकॉज ऑफ सेल्स पर्सन थे वहाँ के, जो सेल्स हेड था। तो पर पर उन्हें भी जो मैं लीड जनरेट करके देता था, वो उससे कन्वर्ट नहीं होते थे। तो फिर हमने मल्टीपल आइटरेशंस करे कि लैंडिंग पेज का तरीका बदला, कि यूजर को मैं वहां पर अ, एक लिमिटेड कंटेंट दिखा रहा हूँ, रिव्यूज भी हमने इनकॉर्पोरेट करे, यूजर के टेस्टिमोनियल इनकॉर्पोरेट करे, गूगल के जो भी पब्लिक डोमेन पे जो रिव्यूज पड़े हैं, कुछ रिव्यूज ऐसे होते हैं जो आप वेबसाइट में आप अपने आप से डालते हैं, ठीक है, उनका कोई वेटिंग नहीं होती है। लेकिन आप राइट। गूगल माई बिजनेस में जो भी रिव्यूज होते हैं वो शायद वेटेड होते हैं। अगर आपके पास 1000 2000 या 500 रिव्यूज गूगल माई बिजनेस पेज में हैं, तो वो जेन्यून है, उनको गूगल यूजर जेन्यून मांगता है, रादर देन कि आप की तरफ से वेबसाइट के अंदर कुछ रिव्यूज या टेस्टिमोनियल लगा देते हो या वीडियो टेस्टिमोनियल लगा देते, डोंट पीपल डोंट रिलाई ऑन दैट। ठीक है, तो हमने लास्ट मतलब उन 3 मंथ्स में रिवाइव करना स्टार्ट किया, कि पहले 5 लीड्स, फिर 12 लीड्स, फिर 15 लीड्स, फिर 20 लीड हुई, 25 लीड, और आज वो सिचुएशन हो गई है कि हम अब वेबसाइट के थ्रू भी करते हैं, और हमारे पास जो उस समय हमने लैंडिंग पेज की मैकेनिज्म स्टार्ट करी थी, जब हमें वेबसाइट से में भी देखिए मल्टीपल इश्यूज थे। वो स्पीड का भी इशू था कि पेजेस ही नहीं लोड होते थे, ठीक है, या हमारा पेज का उस तरह से लेआउट नहीं था जिसमें यूजर को सब कुछ आइटनरी की पूरी इंफॉर्मेशन हो, पूरा टूर पैकेज की जानकारी हो। तो उस समय हम कुल मिला के बहुत सारी चीजें नहीं थी, तो हमने उस अप्रोच स्टार्ट की कि हम लेट्स से कि वी विल गो थ्रू द मार्केटिंग पेजेस। हमने सिंगल एक एक पेज के मार्केटिंग पेजेस बनाए और उसके थ्रू स्टार्ट किया। तो वहां से हमें मोमेंटम मिला। कितना मंथ लगा? 3 to 4 मंथ्स लगे। एक समय तो हमें बंद कर दिया कि यार ये तो पेज ही नहीं ओपन हो रहे हैं, ठीक है। तो वो प्योरली हम जा रहे थे वेबसाइट, तो हमने मार्केटिंग पेजेस की टैक्टिक इस्तेमाल की। अब हम क्या करते हैं, अब हम बोथ करते हैं मोस्टली उसमें वेबसाइट के पेजेस, तो अब हमें वहां से अब हम अब बड़े स्केल पे हैं, मतलब दिन की मंथ की अगर मैं देखूं तो हम 5000 लीड्स जनरेट करते हैं, और उनका कन्वर्जन भी टॉप होता है। मतलब आप ट्रैवल में 4-5% का चलता है, लेकिन 10 से 12% का कन्वर्जन। तो इट्स ऑल अबाउट सब कुछ है आपको। ये भी सिंपल। मैं एक्चुअली इस पे भी मैं जानना चाह रहा था। ये अच्छा आपने पॉइंट रेस किया। ये भी मैं पूछना चाह रहा था, एक आइडियल कन्वर्जन रेट क्या रहता है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है लीड जनरेशन में? जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली हम लोग 5000 10,000 लीड्स हमने जनरेट करी,
बट ऑब्वियसली सारी तो कन्वर्ट होती नहीं है, राइट? तो एक आइडियल कन्वर्जन रेट क्या होती है जिसे हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमने जो लीड जनरेट करी है वो बट अच्छी थी, सही थी? तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं कि कि यहाँ पर कि कोई नंबर हम डालें। ठीक है, नंबर तो ऑब्वियसली नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री की अपनी स्पेशलिटीज होती हैं, वहाँ के कस्टमर्स होते हैं। तो मतलब उनको एक बकेट के अंदर नहीं रख सकते, हर एक का अलग अलग है। मैंने ट्रैवल का बताया 4 से 6% होता है, लेकिन इट डिपेंड अपॉन द सर्विस, आप इस नंबर को बढ़ा सकते हो। ठीक है, ओके। ये तो एंड सभी के साथ होगा। ये ऐसा होगा कि आप अपनी कस्टमर सर्विस के थ्रू कन्वर्जन रेट बढ़ा सकते हो। अगर कस्टमर सर्विस सही नहीं है तो बट आप इसमें। कोई कोई एक मिडिल कुछ ग्राउंड, कुछ कॉमन कुछ होगा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, जैसे जैसे हम अगर मैं एजुकेशन के लिए मैंने लीड जन किया है, और इसी तरह से ट्रैवल के लिए किया है। तो एजुकेशन और ट्रैवल का ऐसे ही रहता है। लेकिन एजुकेशन में भी ये मैटर करता है कि आपकी कस्टमर की जर्नी कितनी, वो कितने समय लेता है कन्वर्ट। जैसे मैं व्हेन आई वाज वर्क फॉर वन ऑफ द कॉलेज एग्रीगेटर, तो वहां पर क्या था कि हमारे यूजर की जो जर्नी थी वो बहुत ही कम थी। मतलब वो हमारे साथ 3-4 मंथ्स रहता था, 3-4 मंथ्स में उसमें कितने डिसीजन मेकर थे, क्योंकि एजुकेशन के लिए तो ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स डिसीजन मेकर है ना। तो यू आर नॉट द ओनली डिसीजन मेकर कि आपको सेल्स पर्सन ने या जो भी आपके साथ डील कर रहा है उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए, आपको कॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए, तो सिर्फ आपके और आपके सेल्स पर्सन के बीच बात हो गई और आपने कर। ठीक है, तो इसमें मल्टीपल डिसीजन मेकर्स होते हैं। पेरेंट्स तो होते ही हैं, पेरेंट्स के पता लगा, फिर उसके में आपके अंकल हो गए, फिर अंकल के और फिर उसमें कोई और हो गए, तो मतलब और हाई एजुकेटेड पर्सन हो, उसने अपना पॉइंट्स रखा। उसकी अलग कंडीशंस हैं कि यार ये चीज़ भी होना चाहिए। मतलब अल्टीमेटली अपने बच्चे के लिए कोई एजुकेशन के लिए जा रहा है तो ऑब्वियसली फिर सारा ज्ञान लगेगा। तो फिर मतलब यहाँ पर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो फिर उतना ही वहां पर कन्वर्जन रेट मुझे लगता है वो ड्यूरेशन बढ़ जाती है। कि जहां राइट। वो यूजर 1 मंथ में या 2 मंथ में हो जा रहा होगा, तो क्या पता 6 मंथ के बाद भी आपके पास आपसे कन्वर्ट ना हो, किसी और से कन्वर्ट हो जाए, जो भी अदर जो सेल्स पर्सन उनके अदर कंपनी के साथ हो जाए, जहां भी उसको बेटर अश्योरेंस मिलेगा, बेटर फीस, बेस्ट और वैल्यू मिल रहा बेस्ट वैल्यू प्रोपोजिशन यूएपी मिलेगा वहाँ पे। ये चीज है। अग्रीड, अग्रीड। है। So before we end, विकास जी, just one last question I wanted to ask, जो मैं यूजुअली अपने सारे जो हमारे मेरे गेस्ट रहते हैं पॉडकास्ट में उनसे मैं ये पूछता हूँ, मैं आपसे भी ये पूछना चाहूंगा कि according to you, looking at the entire you know transformation that is happening, आने वाले टाइम में how do you see the process of demand generation and lead generation transforming? uh, where is it going, where is it going to go? अभी के लिए जैसे हमने चैटबॉट की बात करी, हमने पेड कैंपेन्स की बात करी, हमने पूरा कस्टमर जर्नी की बात करी, बट ये आज की बात है। आज से 10 साल पहले शायद एआई चैटबॉट्स और वो सब नहीं थे, बट आज है। तो आने वाले टाइम में हाउ डू यू सी डिमांड जनरेशन और कैसे ट्रांसफॉर्म होने वाला है, या क्या हो सकता है? डिमांड जनरेशन एंड लीड जनरेशन बहुत, क्या सो स्कोप है उनका? इसको तो ऑब्वियसली बिजनेसेस के लिए या डिमांड जनरेशन, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज का इंटरवेंशन बढ़ेगा, लोगों के पास मतलब थोड़ा सा चैलेंजेस तो होंगे ही। टेक्नोलॉजी कभी आपके मतलब बिजनेसेस के लिए सॉल्यूशन का काम करती है, कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है, या तो देखिए टेक्नोलॉजी के साथ चैलेंजेस भी होते हैं। राइट। आपके लिए मतलब आपको तमाम इतने सारे मोड्स मिल रहे हैं टू जनरेट लीड्स एंड कन्वर्ट देम। ठीक है, तो पर उसके साथ में चैलेंजेस भी हैं कि आपको बजट के सेंस में आपको भाई आप जितना पैसा खर्च कर रहे हो, आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली एज पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि
आपके पास लीड को या कैप्चरिंग वाली जो मैकेनिज्म है यूजर को टैप करने की, वो आसान होती जाएंगी, लेकिन आपकी पॉकेट पे ही बर्डन पड़ेगा। एक टाइम था इन 2014 और 16 के टाइम में कि जब आप लिमिटेड चीजें करते थे, ठीक है, कि आप लेट से कि आप फेसबुक के थ्रू या गूगल एड्स के थ्रू, मैंने जैसे देखा है कि हम इतनी चीजें मार्केटिंग ऑटोमेशन वाली जो करते ही नहीं थे चीजें। जैसे अभी मैं राइट बात करता हूँ कि डिमांड जनरेशन के लिए मैंने क्या किया। मैंने एक फेसबुक पे कैंपेन चलाया, एड्स गूगल एड्स पे कैंपेन चलाया। इसके बाद मैं कुछ भी नहीं करता था, उस समय नहीं करते थे कि ये जो मार्केटिंग ऑटोमेशन वाली, कि लेट से कि मेरी जिन लोगों ने लीड फिलअप करा उनको हम पे मार्केटिंग एक ईमेलर सेंड कर रहे हैं, फिर उनको हम पुश नोटिफिकेशन थ्रो कर रहे हैं, फिर उनको कुछ और कर रहे हैं, इतनी चीजें नहीं थी। राइट लेकिन अब आप उसको अल्टीमेटली आप फेस जमाना है कि पीपीसी एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पैसा बर्न कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप हर एक में से भी जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम आप ले सकते हो कि एंड तक कोशिश करते हो कि इन यूजर्स को मैं कन्वर्ट कर लूँ, है ना। तो राइट वो कस्टमर को आप समाउ उसको कैप्चर कर लो, उससे पेमेंट ले लो, पैसा ट्रांजेक्शन करा लो, या इवन एंड में जो भी जिन्होंने अबंडन किया है कार्ड को उनको भी तक क्यों किया है, मतलब ऑफर्स अवेल कराते हो, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन आज से अगर मैं बात करूं 12 या 13 14 में जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने उस समय से, तो मैंने वो जर्नी देखी, उस टाइम को मैं देखता हूँ, तो उस समय इतनी चीजें नहीं करते थे। लेकिन राइट आज इतनी चीजें आ गई हैं कि या आपको ईमेलर भी ड्रॉप करना पड़ेगा, व्हाट्सएप पे भी आ गए, व्हाट्सएप मार्केटिंग भी करना है, और राइट आपको फिर ईमेलर्स भी करने हैं कि वो जो भाई तमाम सेगमेंट कर बना लिए ना कि अच्छा ये यहाँ पर है, बाइंग साइकिल में यहाँ पर है, तो इनको अच्छा कैसा मैसेज चाहिए, अच्छा ये इस तरह के होंगे, तो बेसिस ऑन हम बात भी करते हैं। तो लाइव मतलब आसान ओनर्स के लिए भी, देखो दोनों, मैं कहूंगा कि आसान भी हो गया है कि मैं पैसा अगर लगाता हूँ तो मैं अंत तक उसमें से बेटर आरओआई निकालने की कोशिश करता हूँ थ्रू दीज मार्केटिंग ऑटोमेशन और थ्रू अदर जो भी और चीजें हो सकती है मार्केटिंग के लिए। तो बट आने वाले टाइम में चीजें तो आसान होंगी, आप नंबर ऑफ जो कन्वर्जन परसेंटेज है वो बढ़ सकता है, बढ़ा ही है। भाई पहले राइट पास मेरे पास लिमिटेड था कि सेल्स पर्सन ने कॉल किया, आपने सेल्स पर्सन की कॉल नहीं रिसीव करनी, आपने काट दिया, खत्म। तो राइट ये राइट राइट विकास जी, thanks a lot for shedding so much insight डिमांड जनरेशन एंड लीड जनरेशन पे जो भी आपने अपने इनपुट दिए हैं. I think they will be really helpful for a lot of listeners on this podcast. So thank you very much once again for joining me for the show. so thank you Drunachar for inviting me to be part of your podcast. Thank you. Thank you Vikas. Thank you for tuning in. If you like the podcast, please do subscribe to my channel on Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, and Google Podcast.